So guys, I have been telling you over and over again, and obviously wherever you will be listening to, you will be listening that the concept of ratios, the concept of fractions, the concept of percentages, how to convert fraction value into percentage values, and you know, change concept, the percentage change percentage concept. These are what the fundamentals are, है ना? And it will be tested time and over again for you. And if the similar kind of pattern which has been coming for the last few years, it will come, then this is what the paper is going to be like. Okay, yes, little more lengthy questions will be. This was relatively an easier passage, I'll say that for sure. I haven't attended, but gone through the questions. They were much easy. Okay, why did you not attempt it, beta? Sorry, the lack of time. Yeah, well, you did attempt the mock, but you did not attempt this particular section. Yes, sir. हमें लगा जैसे हम लोग भी करते हैं कि चलो एक बार मॉक देख लेते हैं जाने से पहले, क्लास में जाने से पहले कि कैसा था. हमें लगा आपने भी वैसे देख लिया, हाँ ठीक है कैसा था जरा पता कर लेते हैं. So for us it is okay guys, because we are here to teach you. For you it is not okay. You have to be very diligent while you are giving your mocks, है ना? And yes, if you were not able to get the time correct time out of it, then obviously you need to work upon your skill of attempting the, actually giving the proper amount of duration to each of the sections. Not in CLAT, but there are other many entrance examinations where you will find that there is a section cutoff. There is a section timing cutoff, which is also there. है ना? So if it is not there, then it's your job to actually make a section timing cutoff for yourself. है ना? So it being the first of the mocks, or one of the first few mocks that you give, everything is maaf as of now, but yes, in the future we need to be more diligent. So let's now dug into the solution of this particular two caselets. Wherever you feel that I am going a little fast, or if only fast only, प्लीज स्टॉप मी देयर. मेरे को पूछो कि यहाँ पे क्या हुआ, कैसे हुआ, या जो भी आपके मन में डाउट हो. ऐसे कर सकते थे या नहीं कर सकते थे, जो भी बातें आप अभी मेरे से पूछेगा. लेट्स स्टार्ट अ डिस्कशन नाउ. ठीक है, तो ये बोल रहा है कि कोई डेटा गिवन है pertains to the students from 3 different classes. So there are सबसे पहला स्टेप होता है ढांचा बनाना, स्केलेटन बनाना. ठीक है, सो इस स्केलेटन में सबसे पहला पार्ट क्या आएगा बेटा कि देयर आर 10 स्टूडेंट्स देयर, देयर आर 11 students there, and there are 12 students also there, है ना? So ये तीन चीजें आ रही हैं यहाँ पे. ठीक है, फिर उसने क्या बोला, the combined number of male students in the class of this and this is 125. मतलब पक्की बात है, वहाँ पे मेल और फीमेल के बारे में बातें हो रही होंगी, है ना? तो यहाँ पे मेल बच्चे होंगे कुछ, यहाँ पे फीमेल किड्स होंगे कुछ, और यहाँ पे आएगा टोटल. This kind of the kind of question that comes is, मैंने आपको बताया था कि क्लैट में 2 टाइप के क्वेश्चन ऑफ पेपर्स आते हैं. ठीक है, पहला क्वेश्चन टाइप जहां पे आपका जो डेटा है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, मतलब जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है. जो मेल है वो फीमेल नहीं है, जो फीमेल है वो मेल नहीं है, जो 10th में है वो 11th में नहीं है, जो 11th में 12th में नहीं है, एंड सो ऑन. सो ये है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डेटा. जब भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डेटा आएगा तो हमेशा आपकी क्या बनेगी, टैबुलर रिप्रेजेंटेशन बनेगा. बट जब भी आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डेटा नहीं आएगा, जब भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डेटा नहीं आएगा, मतलब कुछ कॉमन पोर्शंस होंगे. जैसे कि मैंने आपसे पूछा कि अच्छा आप में से कितने लोग चाय पसंद करते हो, तो कुछ लोगों ने हाथ उठाया. तो मैंने पूछा कितने लोग कॉफी पसंद करते हो, तो कुछ लोगों ने हाथ उठाया. कितने लोग आइसक्रीम पसंद करते हो, तो सबने हाथ उठाया, मतलब कुछ लोगों ने हाथ उठाया. ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डेटा है, नहीं है. ये म्यूचुअली नॉन एक्सक्लूसिव डेटा है, क्योंकि इसमें कॉमन पोर्शन हो सकता है. हो सकता है कोई चाय पसंद करता हो और आइसक्रीम भी पसंद करता हो, कोई आइसक्रीम पसंद करता हो, कॉफी भी पसंद करता हो. तो ये होता है म्यूचुअली नॉन एक्सक्लूसिव डेटा. वहां पे बनता है वेन डायग्राम्स. और क्योंकि ये AIOM था, तो बहुत ही ब्यूटीफुली, बहुत ही सिंपल तरीके से एक
केस सेट आपको दे दिया गया था फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पार्ट विच इज द टैबुलेशन ऑफ द डेटा, और दूसरा पार्ट विच विल बी कॉल्ड द वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, हम दोनों डिस्कस करेंगे आज, ठीक है। तो अगर आप ये देखो तो ये हमारा ढांचा बन गया, दिस इज कॉल्ड द स्केलेटन। यहाँ पे जो ग्रैंड टोटल नंबर है वो यहाँ लिखा जाएगा, जो होगा मेल और फीमेल का भी टोटल, एट द सेम टाइम जो होगा 10th 11th और 12th के बच्चों का भी टोटल, तो दोनों का क्यूमुलेटिव इज कॉल्ड द ग्रैंड टोटल वैल्यू, ठीक है। नाउ उसने क्या बोला था, कंबाइंड नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स इन द क्लास 10th एंड 11th इज 120। 10th और 11th में जो मेल का जो टोटल है वो 125 है, यहाँ पे लिख देता हूँ 125, ठीक है बेटा। फिर उसने बोला द नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट इन क्लास 12th एक्सीड्स द नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट इन द क्लास 10th बाय 40। तो मैंने आपको क्या रूल बताया था बेटा, कि ऑफ के बाद, देन के बाद, विद रिस्पेक्ट टू के बाद, फ्रॉम के बाद, बाय के बाद, एज के बाद, ऑफ के बाद, इन सब वर्ड्स के बाद में जो भी नाउन आता है हम उसको अपना बेस बनाते हैं। तो यहाँ पे उसने क्या बोला, द नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट इन क्लास 12th, ठीक है। सो कैसे लिखूंगा मैं, फीमेल स्टूडेंट इन क्लास 12th exceeds the number of male student in class 10th, ठीक है, मतलब ये ज्यादा है, और मेल स्टूडेंट्स इन क्लास 10th by 40, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो, है ना, ठीक है। तो या फिर आप कैसे लिख सकते हो, फीमेल स्टूडेंट क्लास 12th एक्सीड्स का मतलब यहाँ पे प्लस लगा दो, यहाँ पे प्लस लगा दो, है ना। कितने से एक्सीड करता है, 40 से एक्सीड करता है। किससे एक्सीड करता है, मेल स्टूडेंट इन क्लास 10 से एक्सीड करता है। इसकी वैल्यू अगर मैंने ए मान ली तो ये वाली वैल्यू ए प्लस 40 हो जाएगी। देखो इस इक्वेशन में भी रखोगे, अगर मेल स्टूडेंट क्लास 10 की वैल्यू अगर मैंने ए रखी तो एफ ऑफ 12 माइनस ए अगर 40 है तो माइनस ए को उधर ले जाओगे तो प्लस का ए होके ए प्लस 40 बन जाएगा। क्लियर है बेटा, ठीक है। इस तरीके से लिखना आना चाहिए, सेंटेंस को पढ़ के लिखना आना चाहिए, दैट इज द मेजर थिंग यू हैव टू डू, है ना। इंग्लिश को पढ़ना है, मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 12th इज 360, ठीक है। 12th का जो टोटल है वो है 360, मेल प्लस फीमेल, ठीक है। यहाँ पे अगर इसी वेरिएबल का यूज करना चाहता मैं तो मैं कर भी सकता था, कैसे, तो बोलता है भाई ये a प्लस 40 है, ये टोटल 360 है, तो ये कितना हो जाएगा, 360 में से a प्लस 40 माइनस कर दो तो हो जाएगा 320 माइनस है, यस और नो बेटा, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 360 है ना। सो 360 में से अगर मैंने माइनस कर दिया a प्लस 40 तो आपको नहीं लगता मुझे ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। एट द सेम टाइम अगर नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स इन क्लास 10 अगर a है, इन दोनों का टोटल अगर 125 है तो आपको नहीं लगता ये वाली वैल्यू 125 माइनस से हो जाएगी, दिस प्लस दिस इज 125, ये a है तो बाकी का बच्चा कितना हो गया, 125 माइनस से हो गया, यस और नो। उसकी मदद से आपको क्या मिल जाएगा, दिस प्लस दिस करोगे तो यहाँ पे टोटल भी मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या आएगा, प्लस से माइनस से कट जाएगा, एक ही माइनस से बचेगा, 125 और 320 ऐड हो जाएगा, वो हो जाएगा 445 आई गेस। आई एम नॉट सेइंग ऐसा करना है, मैं बोलो ऐसा कर सकते थे, है ना, ठीक है, लेकिन ऐसा करना नहीं है अभी अपन, ये बहुत ज्यादा प्रोएक्टिवनेस हो जाएगी। पहले क्वेश्चन जितना हमारे लिए इनपुट दे पाए पहले उतना लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो अभी मैंने लिखा नहीं है, ठीक है, क्योंकि आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग यू टू सॉल्व सो मच, है ना। अभी मत करो तो सॉल्व, जो बोलता जा रहा है पहले उतना तो लिख लो, फिर हम येलो कलर से लिखेंगे फिर कि हम लोग ने क्या डिडक्शंस निकाले उसके, ठीक है। तो 360 लिख दिया अपन ने बस। द नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट इन क्लास 10 इज, देखो बेटा कैसे पढ़ना है इंग्लिश को, फीमेल स्टूडेंट क्लास 10th इज, ये कितने हैं, 10 लेस, 10 10th की जगह 10 लिख दो, लेस मतलब माइनस का साइन लगा दो, ठीक है। तो हाउ टू रीड इट, द नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट इन क्लास 10 इज 10 लेस देन द नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट क्लास 10। सो मेल स्टूडेंट क्लास 10 कितने थे, ए, तो a minus 10। आर वी एबल टू रीड लाइक दिस, यस और नो,
ठीक है, अभी नहीं पढ़ पाए होगे आप, मतलब जिन लोगों ने अभी तक क्लास अटेंड नहीं करी है, लेकिन when you will be able to read the classes, will be able to understand this concept, तो आप इतनी ही जल्दी लिख पाओगे, है ना। तो a और a माइनस 10 कितना हो जाएगा, 2a माइनस 10, कम से कम ये वैल्यू तो हमें मिली नहीं, है ना। अगेन ये भी मत लिखते तो भी चलता है मेरे को, ठीक है, चलो वो भी नहीं लिखना, जो एग्जैक्टली बोलेगा सिर्फ उतना ही लिखूंगा। चलो पहले the number of female students in class 11 is 20 less. Female students in class 11th, female students in class 11 is 20 less than the number of male student class 11th. Then the number of male student class 11th. अब जरूरत पड़ गई हमें मेल स्टूडेंट क्लास 11 की, तो एक और वेरिएबल ऐड करने से बेटर है जो डेटा गिवन है उसका यूज किया जाए। तो अब यहाँ पे a था, तो ये 125 माइनस a हो जाएगा, है ना। और स्टूडेंट्स इन क्लास फीमेल स्टूडेंट क्लास 11 हो जाएंगे 20 लेस देन द मेल स्टूडेंट इन क्लास 11, मतलब 125 माइनस a में से 20 माइनस करोगे तो 125 माइनस 20 गए 105 बचे, दैट विल बिकम 105 माइनस 6। ठीक है बेटा, इज दिस डेटा अंडरस्टूड बाय एवरीवन, यस और नो? कोई डाउट किसी को भी? ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 10th इज 150। अब ऐसी ही एक लाइन देके वो आपका दिल जीत लेता है, ठीक है। एक आखिरी में एक ऐसी लाइन बोल देगा जिससे आपके लिए जो भी वेरिएबल्स है वो सारे वेरिएबल्स उड़ जाएंगे और सीधे सीधे आंसर आ जाएगा, है ना। तो उसने क्या बोल दिया, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 10 ए, और a माइनस 10 का जो टोटल है वो है 2a माइनस 10, और उसका कहना है कि ये वैल्यू 150 है। तो इसकी मदद से आप क्या निकाल लोगे, आप बोलोगे 2a will become equal to 160, 150 plus 10 160, so a will become 160 upon 2, a will become 80, a will become 80, if a is 80 तो ये बन जाएगा 70, if a is 80 तो ये बन जाएगा 45, if a is 80 तो ये बन जाएगा 10, या ये बोले ये वाली वैल्यू क्या थी, इस वैल्यू से 20 लेस थी ना, तो 45 में से 20 लेस कर दो तो बचेगा 25। ये वैल्यू क्या थी, a में 40 ऐड कर दो, तो a कितना था 80 आया, 40 ऐड कर दोगे तो हो जाएगा 120, और क्योंकि ये 360 है ये 120 है तो बाकी का बचा हुआ 240 हो जाएगा। यस और नो गाइस, सब मिल गया, ठीक है, सब मिला दिल हसी, एक तू ही नहीं। तो 80 प्लस 240 कितना हो गया, 320, 320 प्लस 45 कितना हो गया, 365, 120 प्लस 70 हो गया 190, 190 में जब 10 ऐड करोगे तो 200, 10 में और 15 ऐड कर दोगे तो 215, 215 ये भी हो गया। ग्रांड टोटल वैल्यू कितनी होगी, दोनों को ऐड कर दोगे तो 65 और 15 हो जाएगा 80, और ये हो जाएगा 580। अपने यहाँ से क्रॉस चेक करना है तो ये चेक कर लेना, ये 150 प्लस 360 प्लस इन दोनों का टोटल कितना हुआ, 45 और 25 कितना, 70। ये चेक कर लो 150 और 70 कितना होता है, 220, 220 और 360 580 होता है, हाँ होता है। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन सही आया है। इज दिस अंडरस्टूड बाय एवरीवन, यस और नो? जयवर्धन प्लीज स्विच ऑन कैमरा बेटा, ठीक है, समझ में आया बेटा? सृष्टि, दीपाली, अंडरस्टूड, यस और नो? कोई लाइन पढ़ने में दिक्कत आई? ओके सर, हाँ ठीक है बेटा, मतलब यू हैव स्टडीड मैथमेटिक्स टिल योर क्लास 10th ना, ठीक है। उसके बेसिस पे ऐसी कोई चीज थी जो इंग्लिश में लिखी हुई है लेकिन आपको समझ में नहीं आई हो, उसका कॉम्प्रिहेंशन आप नहीं कर पा रहे हो, उसके बारे में अगर कुछ पूछना चाहते हो अभी भी पूछ सकते हो आप। एनीवन वांट टू आस्क एनीथिंग?
चलिए जी, तो बस अब इस क्वेश्चन का डेटा यूज करना है और अब मैं हटा रहा हूँ, अब मैं क्वेश्चंस पे आ रहा हूँ, ठीक है। सो मैंने डेटा को वापस यहाँ पर बस पीपीटी में डाल दिया है ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें आसानी हो। आपने देखा होगा जब मैंने उस समय लिखा था तब यहाँ 10, 11, 12 लिखा था, यहाँ मेल और फीमेल लिखे थे, कोई बात नहीं, नंबर सेम है ना, ठीक है। तो जब भी हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमेशा भूल जाते हैं कि कौन सा कहाँ पे लिखा था, अगेन इट डजंट मैटर, ठीक है। चलिए अब आके क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कहता है फाइंड अ नंबर ऑफ मेल्स स्टडीइंग इन क्लास 10th। अच्छा, जब भी मैंने आपको अगेन सृष्टि किया और कुछ लोग की भी शायद पहली क्लास है आज मैथ्स की, इसलिए मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ वो लाइन बेटा। ऑफ के बाद, देन के बाद, विद रिस्पेक्ट टू के बाद, रिलेटेड टू के बाद, फ्रॉम के बाद, एज के बाद, बाय के बाद, और भी कोई वर्ड भूल गया होगा तो उसके बाद जो भी नाउन आता है हम उसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं, ठीक है। हम उसको अपने फ्रैक्शन का टोटल बना देते हैं, हम उसको अपनी परसेंटेज वैल्यू जो निकालनी होती है उसका बेस बना देते हैं, ठीक है। फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, अ पार्ट अपॉन टोटल। तो जो भी इन वर्ड्स के बाद में नाउन आएगा हम उसको अपना बेस बना देंगे, ठीक है। तो जैसे ही आपने क्वेश्चन पढ़ा, इसमें क्या लिखा है, इज व्हाट परसेंटेज ऑफ, तो ऑफ के बाद में क्या नाउन आया, ऑफ के बाद में जो भी आया वो हमारा नाउन को रखना है डिनोमिनेटर में, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या रखेंगे, फीमेल स्टडीइंग इन द क्लास 10, तो फीमेल स्टडीइंग इन द क्लास 10 को रखना है डिनोमिनेटर में। फीमेल स्टडीइंग क्लास 10 को किससे कंपेयर किया जा रहा है, द नंबर ऑफ मेल्स स्टडीइंग क्लास 10। तो और क्या वो इस व्हाट परसेंटेज ऑफ पूछना, मतलब डायरेक्टली कंपेयर कर रहा है, हाँ, तो हम डायरेक्टली मेल्स इन क्लास 10 से उनको कंपेयर करेंगे, ठीक है। ये रूल समझ में आया बेटा, ठीक है। सो मेल्स इन क्लास 10 कितने थे बेटा, 80 थे। फीमेल्स इन क्लास 10 कितने थे, 70 थे। जिन लोगों ने कल ही क्लास अटेंड करी थी, याद आ रहा है कुछ, 8/7 कैसे बताया था, 1/1/7 होता है ना। 8/7 कैन बी रिटन एज 1/1/7 इंटू 100 जब करोगे तो 1 इंटू 100 हो जाएगा 100, और 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू इंटू परसेंटेज वैल्यू मैंने आपको याद कराई है। जल्दी से बताओ कौन बताना चाहता है, 1/7 इंटू 100 क्या होता है, सर 14.2854 0.285 4 4 5 7 यस सर। है ना। इसका आंसर हो जाएगा 114.2857। जब आप लोग परसेंटेज फ्रैक्शन वाली क्लास अटेंड करोगे उसके बाद भी आप इसी तरीके से आंसर कर पाओगे, ठीक है। सो द आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वाज 114.28 तक गिवन है यहाँ पे। इज दिस अंडरस्टूड, यस और नो, आया सभी का, ठीक है। चलिए, सो वंस डन, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Find the difference between the total number of male and total number of female taken from all the classes together. Total number of male 365. Total number of male हो गए 365, total number of female हो गए 215. डिफरेंस लेना है, सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है ना। 365 माइनस 215 करो, कितना आएगा, 150। यस, 150 बिकम्स द आंसर, ठीक है। सो 150 मतलब बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। मेरे को नहीं लगता इसमें मेरे को पेन भी यूज करने की जरूरत है ना। शैल वी मूव फॉरवर्ड, किसी को कोई डाउट, कोई कुछ पूछना चाहता है, ठीक है जी। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ मेल स्टडीइंग इन क्लास 12th टू द टोटल नंबर ऑफ फीमेल स्टडीइंग इन द सेम क्लास। तो 12th में मेल और 12th में फीमेल का रेशियो पूछा गया है, ठीक है। तो 240 मेल है, 120 फीमेल है, 240 रेशियो 120 क्या होगा, 2:1 हो जाएगा।
Yes, so 2:1, C options become your answer. Is this also understood, guys? Understood? The number of girls studying in class, नहीं 9th and 10th नहीं है, क्या है ये 11th and 12th है, क्या है क्वेश्चन, जल्दी से कोई बताएगा मुझे? Yes, sir. 12th. हाँ जी, 11th and 12th. हाँ 11th and 12th. The number of girls studying in class 11th and 12th is what percentage more or less? More or, मैंने बताया था ऑफ के बाद देन के बाद, देन मतलब यही वाली देन के बाद, है ना? और जब भी मोर देन या लेस देन की बात हो रही होती है तो हम किसके बारे में बात कर रहे होते हैं? अगर मैं बोलता हूं कि a इज 20 मोर देन b, तो ये 20 क्या है? क्या a की वैल्यू है, b की वैल्यू है? अगर मैं बोलता हूं a इज 20 मोर देन b, तो ये a की वैल्यू है, b की वैल्यू है? डिफरेंस है, यस, ये दोनों का डिफरेंस है, ठीक है? तो यहाँ पे मोर देन के बाद, मोर और लेस देन के बाद जो नाउन आया वो आया टोटल नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट इन द सेम क्लासेस, ठीक है? सो मेल स्टूडेंट्स जो 11th एंड 12th में होंगे, मेल स्टूडेंट जो 11th एंड 12th में होंगे वो कितने हो गए बेटा? 240 और 45, दैट विल बिकम 285. और मोर देन या लेस देन के बाद में ये नाउन आया है ना, तो 285 को रखेंगे हम डिनोमिनेटर, 285 को रखेंगे हम कहाँ? डिनोमिनेटर में, ठीक है? समवन वांट्स टू जॉइन, ठीक है, ठीक है? सो हम उसको रखेंगे डिनोमिनेटर में, ठीक है? और द नंबर ऑफ गर्ल्स स्टडीइंग इन क्लास 11th एंड 12th, गर्ल्स स्टडीइंग क्लास 11th एंड 12th कितने हो गए? 120 plus 25, that would be 145. So that would be 145. ये क्या है? लेस है ना? The number of girls studying in class 11 and 12 is less than the number of males studying in class 11 and 12. इसलिए यहाँ पे मोर देन और लेस देन में अगर दो ऑप्शन ऐसे भी आते हैं कि एक बोलेगा दिस मच परसेंटेज मोर, दिस मच परसेंटेज लेस, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या किया जा रहा है ना? तो ये नंबर कितना कम है या ज्यादा है? ये नंबर 145 है और जो दूसरा वाला नंबर है वो 285 है, तो ये क्या है? 145 ऑब्वियसली लेस है ना, तो इसको हम रखेंगे न्यूमरेटर में, ठीक है? अब 140 अपॉन 285 इंटू 100 अगर सॉल्व करोगे आप तो आपका आंसर, इन ऑप्शन को देखो पहले तो, अगर ये वैल्यू 285 की जगह 280 होती तो आपको नहीं लगता आपका आंसर 50% होता, है ना? सो द आंसर शुड बी वेरी क्लोज टू 50%, पहली ही बात, ठीक है? जो भी डिनोमिनेटर होता है उसको हम अपना टोटल मानते हैं, तो अगर 285 अपने आप का टोटल है, मतलब 285 अपने आप का अगर 100% है, तो ये बताओ उसका 50% कितना होगा? हो जाएगा 142.5, इसका आधा कर दो बस, न्यूमरेटर में लिखा है 140, 2.5 कितना होगा? ठीक है, अब अगर 100% 285 है, मुझे बता दो 1% कितना होगा? 1% हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 100, 100 में जब 100 डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, वैसे ही 285 में जब आप 100 डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 2.85, और जब 50 में से 1 माइनस करोगे तो आएगा अप्रोक्सीमेटली क्या? एग्जैक्टली 49, लेकिन 142.5 में से जब आप 2.85 माइनस कर दोगे तो वैल्यू 140 से थोड़ी सी कम आ जाएगी, है ना? इसका मतलब हमें चाहिए एग्जैक्टली 140, इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो 49% से थोड़ा सा ज्यादा होगा। 49% से थोड़ा सा ज्यादा क्या? 49% के आसपास का सिर्फ एक ही ऑप्शन गिवन था, इसलिए वो मेरा आंसर हो जाएगा। Is this understood, guys? Percentage? So can I explain it again? हाँ जी, हाँ जी। 320 285 वाला एक बार दोबारा एक्सप्लेन करना। अच्छा एक बार बताओ बेटा,
ये 365 लिखा हुआ है ना। 365 अपॉन 10 की वैल्यू क्या होगी? 365 अपॉन 10 की वैल्यू क्या होगी? जब भी डिवीजन बाय 10 करना है मतलब डेसिमल को पीछे से एक डिजिट आगे खिसकाना 36.5. है। इसकी प्लीज म्यूट योरसेल्फ बेटा। 1% वैल्यू क्या आएगी? पीछे से 2 डिजिट आगे किसका दूं? दैट विल बिकम 3.65। यस और नो? है ना। तो ये जो भी डिनोमिनेटर में लिखा होता है उसको हम अपने आप का टोटल, अपने आप का 100% मानते हैं। ठीक है। तो मैंने पहले तो बोला कि अगर आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू सॉल्व करनी है तो 285 को अप्रोक्सीमेटली 280 मान लो। 0 से 0 कटेगा, 14 वन जा 14 टू जा हो जाएगा, 2 वन जा 250 जा हो जाएगा। तो अप्रोक्सीमेट आंसर 50% हो जाएगा। यस और नो? दैट वाज वन वे ऑफ सॉल्विंग, है ना। फिर कोई मेरे से पूछेगा कि सर हो सकता है कि 50.1 जैसा ऑप्शन हो, तो हम कौन सा मार्क करेंगे? तो बेटा आपको ये समझने की जरूरत है, ये बताओ कि 140 अपॉन 280 ज्यादा बड़ा होगा या 140 अपॉन 285 ज्यादा बड़ा होगा? अगर न्यूमरेटर सेम तो जिसका डिनोमिनेटर जितना ही छोटा वो नंबर उतना ही बड़ा। इसका मतलब 140 अपॉन 280 इज मोर देन 140 अपॉन 285। इसका मतलब आपका आंसर 50% से कम होगा। आपका आंसर 50% से कम होगा इसका मतलब। तो अगर ऐसा भी ऑप्शन आता 50.04 और एक ऑप्शन आता 49.122, तो कौन सा मार्क करना है वो ही बता दिया मैंने आपको। ठीक है। अगर बिल्कुल ही सॉल्व करना है तो कैसे करना है वो बता रहा हूं मैं आपको। कि अगर यहाँ पे 285 का 285 ही लिख रह दिया होता अपन ने, ये 140 लिखा होता तो हम बोलते भैया जो 285 है ना वो अपने आप का 100% है। 285 अपने आप का 100% है। तो हमें पहुंचना है 140 तक, तो हमने बोला अप्रोक्सीमेटली इसका आधा कर दो। तो जब आप 100 का आधा करते हो तो आपको मिलता है 50। तो आप जब 285 का आधा करते हो, आधा करने का मतलब होता है डिवीजन बाय 2 करना। तो जब इसको डिवाइड बाय 2 करोगे तो आपको मिलेगा 142.5, है ना। तो आप ये भी समझ गए कि हमारा आंसर 50% से कुछ ना कुछ कम आना चाहिए, क्योंकि न्यूमरेटर जो है वो 140 है, हमें 142.5 मिल चुका है 50%। इसका मतलब आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, इससे थोड़ा कम आएगा। कितना कम? 2.5 के आसपास कम। अगर 285 अपने आप का 100% है तो उसका 10% 28.5 होगा। हमें तो 2.5 चाहिए। उसका 1% डेसिमल दो इधर किसका दो हो जाएगा 2.85। क्या मैं 2.85 को अप्रोक्सीमेटली 2.5 बोल दूं? है ना। तो 1% अप्रोक्सीमेटली 2.5 हो गया। तो हमारा आंसर अप्रोक्सीमेटली 140 49% के आसपास होना चाहिए। ये बोल रहा था मैं आपसे। अब आया समझ में बेटा? All the methods, all the approaches, is it understood by everyone? Yes, sir. ठीक है। अगला क्वेश्चन, इफ 25 न्यू मेल स्टूडेंट इन द क्लास, ये क्या है बेटा जरा मेरे को पढ़ के बता देना क्वेश्चन। टेंथ ही होगा, 10th and 11th, है ना। Yes, sir. ठीक है। if 21 new male students join in the ratio of 2:3, तो 10th में अगर 2 बच्चे गए तो 11th में 3 बच्चे जाएंगे। तो टोटल मिला के अगर 5 बच्चे हुए, अगर टोटल मिला के 5 बच्चे हुए तो 2 बच्चे जाएंगे यहाँ, 3 बच्चे जाएंगे यहाँ। लेकिन क्या 5 बच्चे ऐड हुए हैं टोटल मिला के? नहीं। टोटल मिला के 25 न्यू स्टूडेंट्स हैव जॉइंड। तो हम 5 में ऐसा क्या करें कि वो 25 हो जाए? What should I multiply to 5 to make it 25? Can anybody give me the answer to this? 5. 5 मल्टीप्लाई कर दो,
तो वही मल्टीप्लाइंग फैक्टर यहाँ पे भी वर्क करेगा, वही मल्टीप्लाइंग फैक्टर यहाँ पे भी वर्क करेगा। जिसने भी मेरी पहली क्लास अटेंड करी है उसको ये बात क्लियर होगी कि हमें कोई जरूरत नहीं है लेट द कॉमन फैक्टर बी एक्स यूज करने की। वी कैन यूज द कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो हमने क्या किया, हमने 10 बच्चे ऐड कर दिए, हमने 10 बच्चे ऐड कर दिए 10th में मेल। मेल अब 80 की जगह 10 और ऐड होके 90 हो गए हैं। और 11th में मेल 45 में ऐड होके 15 और हो गए हैं, तो अब हो गए 60। ठीक है, सो व्हाट इज द क्वेश्चन आस्किंग यू बेटा? Then find the difference between the number of male and female students in the class 10th and 11th after joining of the new students. इन दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है। 90 और 60 का डिफरेंस कितना होगा बेटा? 30। यस, 30 becomes my answer, डी ऑप्शन। ठीक है बेटा, एनी डाउट्स एनीवन? किसी को लगता है दोबारा सॉल्व करना है, फिर से बताना है, प्लीज आस्क। जल्दी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस बिकम्स द नेक्स्ट केसलेट, जो मैंने आपसे बोला ही था कि एक और केसलेट आएगा जो बात करेगा किसके बारे में, वेन डायग्राम वाले कंसेप्ट के बारे में, जो कि होंगे म्यूचुअली नॉन एक्सक्लूसिव डेटा। उसको कैसे सॉल्व करते हैं जरा पढ़ते हैं। इन अ सोसाइटी, कुछ लोगों को नहीं पता होगा वेन डायग्राम्स, तो अभी यार बताने की कोशिश करूंगा जितना हो पाएगा। ठीक है, इन अ सोसाइटी देयर आर अ टोटल ऑफ 200 फैमिलीज। तो वेन डायग्राम्स क्या बोलता है? वेन डायग्राम्स बोलता है कि जो पूरा का पूरा डेटा होता है ना, उसको पहले तो रखो एक रेक्टेंगल के अंदर। जो भी डेटा आएगा वो कहाँ आएगा? रेक्टेंगल के अंदर आएगा। और उसका कहना है कि जो यूनिवर्स है वो 200 है। ठीक है, जो जितनी भी बातें हो रही हैं वो कितने लोगों के बारे में हो रही हैं? द डिस्कशन इज अबाउट 200 ऑड पीपल। इज दिस अंडरस्टूड? ठीक है, आउट ऑफ दैट 47.5% of the people have subscribed to the YouTube channel. तो एक सर्कल बनाएंगे, दूसरा सर्कल बनाएंगे, तीसरा सर्कल बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक डेटा दिया जा रहा है YouTube चैनल के बारे में। ठीक है, एक कोई नई चीज पता नहीं, हमें तो नहीं पता क्या होती है, डिस्कॉर्ड टाइप का कोई नया आया होगा, कोई है कुछ डिस्कॉर्ड करके, और एक है फेसबुक। ठीक है, 47.5% ऑफ द पीपल मतलब कौन? ऑफ दो 200 लोग। ठीक है, तो एक रूल मैंने आपको बताया था, दैट वाज ए परसेंटेज ऑफ बी इज द सेम एज बी परसेंटेज ऑफ ए। ठीक है, समझ आया? ए परसेंटेज ऑफ बी इज द सेम एज बी परसेंटेज ऑफ ए। तो कोई मुझसे पूछता है कि भैया 47.5% ऑफ 200 बताओ, तो मैं बोलूंगा कि आप तो मुझे 200% ऑफ 47.5 बता। एंड इस पर्टिकुलर केस में यही सबसे यूजफुल मेथड हो सकता है। 200% का मतलब दुगना, 100% मतलब जितना है उतना पूरा का पूरा, 200% मतलब दुगना। तो 200% ऑफ 47.5 का मतलब है 40 का डबल करो, हो गया 80। 7.5 का डबल करो, हो गया 15। 7.5 का डबल 15 हो गया ना। तो 47.5% ऑफ 200 हो गया 200% ऑफ 475। 47.5 मतलब 47.5 का करना था डबल, तो हमने पहले किया 47.5 को माइंड में लिखा 40 और 7.5। 40 का डबल किया तो 80 आया, 7.5 का डबल किया तो 15 आया। 80 प्लस 15 हो गया 95। तो इतने लोग YouTube लाइक करते हैं। ठीक है, और YouTube लाइक करने का मतलब क्या है? ये पूरा सर्कल ऑफ YouTube, दिस होल सर्कल इज द सर्कल ऑफ YouTube। इसके अंदर 4 प्रजाति के लोग हैं। ठीक है, इसके अंदर 4 प्रजाति के लोग हैं। एक वो लोग
जो सिर्फ यूट्यूब लाइक करते हैं, ठीक है ना। एक वो लोग जो, या ओवरऑल की बात कर लेता हूं, ए है वो लोग जो सिर्फ यूट्यूब लाइक करते हैं, बी है वो लोग जो सिर्फ डिस्कॉर्ड लाइक करते हैं, सी है वो लोग जो सिर्फ फेसबुक लाइक करते हैं। अब सिर्फ लाइक करने का मतलब क्या हुआ भैया? सिर्फ लाइक करने का मतलब हुआ ये वाला रीजन, मतलब ना तो भैया वो डिस्कॉर्ड लाइक करते हैं, ना ही वो लोग फेसबुक लाइक करते हैं, ये है सिर्फ यूट्यूब वाला रीजन। ये बी वो लोग हैं जो सिर्फ यूट्यूब लाइक, ये डिस्कॉर्ड लाइक करते हैं। ठीक है बेटा, ये व्हाइट वाले वो लोग हैं, व्हाइट कलर इसलिए बना रहे क्योंकि आप कहाँ जिंदा है बेचारे ये लोग जो यूट्यूब लाइक करते हैं। अब तो इंस्टाग्राम का जमाना आ गया। ये वो लोग हैं जो सिर्फ यूट्यूब लाइक, ये फेसबुक लाइक करते हैं। ये बात समझ में आई? फिर आते हैं वो लोग जो यूट्यूब और डिस्कॉर्ड तो लाइक करते हैं, यूट्यूब और डिस्कॉर्ड तो लाइक करते हैं, लेकिन उनका फेसबुक से कुछ भी लेना देना नहीं है, ठीक है। ऐसे ही ये वो लोग हैं जो डिस्कॉर्ड और फेसबुक तो लाइक करते हैं, लेकिन उनका यूट्यूब से कुछ लेना देना नहीं है। ये आ गए वो लोग जो यूट्यूब और फेसबुक लाइक करते हैं, लेकिन उनका डिस्कॉर्ड से कुछ लेना देना नहीं है। और आखिरी में आ गए ये वो लोग जो डिस्कॉर्ड भी लाइक करते हैं, फेसबुक भी लाइक करते हैं और यूट्यूब भी लाइक करते हैं, ऑल थ्री। इस तरीके से ये ए बी सी। डी है वो लोग जो यूट्यूब एंड डिस्कॉर्ड बट नॉट फेसबुक। ई है वो लोग जो डिस्कॉर्ड एंड फेसबुक बट नॉट यूट्यूब। एफ है वो लोग यूट्यूब एंड फेसबुक बट नॉट डिस्कॉर्ड। और जी है वो लोग जो ऑल थ्री ऑफ देम, ठीक है। तो ये जो, और ये एक्स वो लोग हैं जो लाइक नीदर, जो तीनों ही लाइक नहीं करते। तो जब भी आपके पास चार चीजें होंगी तो उन चार, सॉरी, जब भी आपके तीन चीजें होंगी तो आपके पास चार ऑप्शन है। एक आप कुछ भी ना लाइक करो, एक आप उनमें से सिर्फ एक ही चीज लाइक करो, है ना, एक आप उनमें से कोई भी दो चीजें लाइक करो, एक आप तीनों के तीनों लाइक करो, ठीक है। सो इससे बनते हैं हमारे रीजन्स एग्जैक्टली 1, एग्जैक्टली 2, एग्जैक्टली 3 और नीदर, ठीक है। एग्जैक्टली 1 रीजन में आ जाता है ए बी और सी। एग्जैक्टली 1 का मतलब या तो सिर्फ यूट्यूब या सिर्फ डिस्कॉर्ड या सिर्फ फेसबुक। एग्जैक्टली 2 में आ जाता है डी ई और एफ। एग्जैक्टली 3 में आ जाता है जी और नीदर में आ जाता है एक्स। इज दिस अंडरस्टूड गाइस एवरीवन? क्या ये बात समझ में आ रही है सभी को? ठीक है, somebody is saying Yes, something, sir. ठीक है जी। तो ये 95, अब 95 क्या डेटा रिप्रेजेंट कर रहा है वो भी समझो। व्हाट इज दिस 95 बेटा? ये जो 47.5 वैल्यू आई थी, ये जो ए बी एफ और जी, ये पूरे सर्किल का जो डेटा है ना वो है 95।
क्लियर है? चलो अगली लाइन पढ़ते हैं। 53.5% हैव टेकन डिस्कॉर्ड। ठीक है, 53.5% यहाँ पे आएगा, और 53.5% ऑफ 200। अभी तक ये कैलकुलेशन सबसे डिफिकल्ट लग रही थी इस पूरे केसलेट में। ठीक है, अगर आपने यही को बस ये पलट दिया होता कि 200% ऑफ 53.5 मतलब डबल ऑफ 53.5, मतलब 50 का डबल करो 100, 3.5 का डबल करो 7, तो 100 प्लस 7 107 हो जाएगा। माइंड कैलकुलेशन में सॉल्व कर पा रहे हो? किसी को ये बात भी समझ में नहीं आए तो पूछो। सो डिस्कॉर्ड की वैल्यू हो गई 107, और ये जो 107 है ये भी क्या है? ये है बी, ये है डी, ये है जी, ये है ई का टोटल। नेक्स्ट, 54% हैव अ फेसबुक। 54% वो है जो फेसबुक लाइक करते हैं। 54% ऑफ 200 का मतलब हो गया दुगना ऑफ 54। 50 का दुगना 100, 4 का दुगना 8, 100 प्लस 8 108। ठीक है, और ये 108 भी क्या है? ये है C प्लस F प्लस G प्लस E की वैल्यू 108। मैं ये यूज नहीं करने वाला हूं, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। ठीक है, 6% ऑफ देम। ठीक है, 6% ऑफ 200 मतलब 200 ऑफ 6, मतलब दुगना ऑफ 6। दुगना ऑफ 6 का मतलब 12, 6 दूनी 12, है ना? 12 ऐसे लोग हैं who have subscribed to YouTube and Discord but not Facebook। ठीक है, तो YouTube and Discord but not Facebook, मतलब ये D का वैल्यू दे रहा है। तो आपको बता रहे हैं कि भैया जो D है ना, E है 12। ठीक है, ये जो D है वो है 12। 10% of the people have taken Facebook and Discord but not YouTube, मतलब E। तो ये 10% है। 10% मतलब 1/10। 200/10 कितना हो जाएगा? 20। तो 20 हो गया यहाँ पे, E की वैल्यू आ गई 20। ठीक है बेटा, अब उसने और क्या बताया? एंड 15% का टेकन सब्सक्रिप्शन ऑफ ऑल द 3। G की वैल्यू आ गई 15%। 15% ऑफ 200 का मतलब दुगना ऑफ 15 कर दो 30। सो G की वैल्यू 30 आ गई। क्या इसमें कोई डाउट? अब अगर आप देखो तो ये जो सर्किल है, येलो ग्रीन और ये वाला कलर वाला जो सर्किल है, इस कलर और डेटा में 3 चीजें गिवन है, सिर्फ बी अननोन है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि 30, 20, 50, 50 और 12 62? ठीक है, 62 और बी, ये चारों चीजें मिला के 107 है। तो 107 में से 62 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 107 में से 62 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 45। यस और नो? अगर अननोन अब सिर्फ एफ, ए और सी रह गए हैं। ठीक है, अब जरा मैं एक और चीज करने वाला हूं, जरा ध्यान से सुन लेना, देख लेना। ठीक है, अब ये जो पूरे सर्किल है इसमें अब ये 3 अननोन है। एक काम करो, आप एक के टर्म्स में वैल्यू लिख दो। ठीक है, कैसे? एफ अननोन है हमारे लिए, एफ को अननोन रखते हैं। ये पूरा सर्किल 95 था। ठीक है, इस 95 में से अगर मैंने 30 माइनस किए बचे 65। 65 में से मैंने 12 माइनस कर दिए, कितने बचे? 55 में से 2 और माइनस कर दूंगा 53। 53 बचे। तो ये जो 53 है वो इन दोनों का टोटल है। तो अगर ये एफ है तो क्या मैं ए को 53 माइनस एफ बोल सकता हूं? इन दोनों का टोटल 53 था, ये एफ था, तो बाकी का बचा वो 53 माइनस एफ हो गया। कैन आई से दैट? सिमिलर लॉजिक से अगर मैं बोलता हूं ये पूरा जो सर्किल है वो 108 है, उसमें से 30 और 20 50 माइनस कर दोगे तो बचेगा 58। ठीक है, अब अगर मैं बोलता हूं कि 58 और सी मिला के 58 है, तो अगर ये एफ है तो ये क्या हो जाएगा? 58 माइनस एफ। क्या इसमें कोई डाउट? ठीक है, इन तीनों सर्किल में से सबसे बड़ा सर्किल कौन सा है? सबसे ज्यादा डेटा किसमें है? 108 वाले का सबसे बड़ा है। ठीक है, 108 वाला सर्किल
108 डिनोट्स ये चारों रीजन। इसके अलावा क्या क्या है? इसके अलावा है 53 माइनस एफ। इस सर्किल के बाहर क्या क्या है? 53 माइनस एफ, 12 और 45, 12 और 45 है ना। एंड दिस शुड बी इक्वल टू द ग्रैंड टोटल विच इज 200। ये किसके बराबर होना चाहिए? 200 के बराबर। यस और नो? ठीक है। अब इस डेटा का यूज करके मेरे को जरा एफ की वैल्यू बता दो क्या आएगी। 53 प्लस 12 हो जाएगा 65, 65 और 45 हो जाएगा 110, 110 और 108 हो जाएगा 218। तो एफ की वैल्यू हो जाएगी 218 में से 200 गए तो एफ की वैल्यू होगी 18। यस और नो? तो एफ की वैल्यू 18 हो गई, जो इकलौता अननोन फिगर था मेरे लिए। ठीक है। क्योंकि इस डेटा में कहीं पे भी ऐसी बात नहीं मेंशन्ड है कि ऐसे भी कोई लोग हैं जो नीदर लाइक करते हैं, सो वी एज्यूम दैट नीदर पोर्शन वुड हैव बीन जीरो, अदरवाइज तो क्वेश्चन कभी सॉल्व ही नहीं हो पाता। अब कुछ लोग बोलेंगे अरे सर वो लिखा नहीं था, नहीं तो हम सॉल्व कर लेते। ठीक है। हाँ, तो यू विल हैव टू एज्यूम बेटा कि अगर कुछ नहीं गिवन है नहीं तो क्वेश्चन कभी सॉल्व ही नहीं हो पाता, क्योंकि इसमें हो जाते हैं 4 वेरिएबल। एक तो कॉमन वेरिएबल है इसलिए कर पाए आप जल्दी से, एक सिंगल वेरिएबल में पूरे क्वेश्चन को चेंज किया और सॉल्व कर दिया। इज दिस अंडरस्टूड टू एवरीवन? सर एक बार फिर से समराइज कर दीजिए ना। ये कैसे करते हैं? पूरा बताना ही पड़ता है। क्या नहीं आया पहले वो समझाने की कोशिश करो मुझे। सर ये आपने 4 वेरिएबल्स लिखे, फिर आपने इक्वेशंस बनाई 3, उसके बाद का बीच का समझ में नहीं। आपको ये समझ में आया ये रीजन्स वाली कहानी? यस सर। अगर रीजन्स वाली कहानी है मतलब ये जितने भी 8 रीजन है वो डिफाइन कर पाया हो अपने दिमाग में? यस सर। अगर वो डिफाइन कर पाया हो तो मैं पूरा दोबारा पढ़ा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ये है सर्कल ऑफ यूट्यूब, ये है सर्कल ऑफ डिस्कॉर्ड, ये है सर्कल ऑफ फेसबुक। तो यूट्यूब, डिस्कॉर्ड और फेसबुक, जो यूनिवर्स है वो है 200 लोग हैं पूरी सोसाइटी में। ठीक है। नीचे वाली दुनिया जीरो है इसलिए हम लोग अब उसको जीरो ही रख रहे हैं, क्योंकि कहीं पे मेंशन नहीं है कि कोई ऐसा भी जो तीनों लाइक ना करता हो। तो उसने सबसे पहले क्या बोला? 47.5% ऑफ पीपल हैव सब्सक्राइब टू द यूट्यूब। तो यूट्यूब की वैल्यू हो गई हमारी कितनी? 95 है ना। उसी तरीके से ये वाली वैल्यू होगी 107, ये वाली वैल्यू होगी 108। सॉल्व करने की जरूरत तो नहीं है। नो सर। फिर उसने क्या बोला? 6% ऑफ देम हैव सब्सक्राइब टू यूट्यूब एंड डिस्कॉर्ड बट नॉट फेसबुक। तो यूट्यूब एंड डिस्कॉर्ड बट नॉट फेसबुक मतलब ये वाला रीजन, तो वो हो गए 12। इसमें कोई दिक्कत? ये 12 कैसे आया सर? बेटा 6% ऑफ 200 इज 12। तो ये वो रीजन आ गया जो यूट्यूब, देखो यूट्यूब एंड डिस्कॉर्ड की वैल्यू होती ये और ये मिला के, लेकिन उसने वर्ड्स क्या यूज किए? यूट्यूब एंड डिस्कॉर्ड बट नॉट फेसबुक। तो इसका मतलब इन दोनों पोर्शन में से पहले से बोला कि यूट्यूब एंड डिस्कॉर्ड मतलब दिस प्लस दिस बट नॉट फेसबुक, तो हमने बोला ये छुपा दो, तो ये 12। ये बात समझ में आई? यस सर। ठीक है। जब एक बार ये बात समझ में आ गई तो फिर उसने अगली लाइन क्या बोली? 10% ऑफ हैव टेकन फेसबुक एंड डिस्कॉर्ड बट नॉट यूट्यूब। तो फेसबुक एंड डिस्कॉर्ड बट नॉट यूट्यूब मतलब ये वाली वैल्यू 20 हो गई। यस सर। ऑल 3 ऑफ देम उसने बता दिया 30 है। तो इसका मतलब अगर कोई आपसे पूछेगा कि ये बताओ यूट्यूब एंड डिस्कॉर्ड वाली यूट्यूब एंड डिस्कॉर्ड कितना है, तो आप बोलोगे 30 + 12। कोई आपसे पूछेगा कि डिस्कॉर्ड एंड फेसबुक कितना है, तो आप बोलोगे 50। समझ में आ रही है बात? यस सर। अब अगर मैं बोलूं कि इस पूरे सर्किल में 4 डेटा थे, ओनली डिस्कॉर्ड, 12, 30 एंड 20, इनमें से 50 और 12 62 ये नोन है, तो बाकी का बचा हुआ क्या चले जाएंगे? बाकी के ओनली डिस्कॉर्ड आ जाएंगे। यस सर। इस वैल्यू को मैंने ए मान लिया। ठीक है। तो ये वाले सर्किल में 108 में से 50 चला गया तो कितना बचा? 58। ये और ये मिला के 58 है, तो ये ओनली
फेसबुक 58 माइनस ए हो जाएगा। यस सर। ये वाला सर्कल 95 है, उसमें से मैंने 42 माइनस कर दिया, तो 95 में से 42 गए, कितना हो गया 53। ये और ये मिला के 53 है, तो वैसे ए हटा दे तो कितना हो गया 53 माइनस ए। यस सर। ठीक है, अब ये सारा डेटा आ गया। कोई, अब मैंने तो उस समय लिया सबसे बड़ा सर्कल, आप कोई भी सर्कल ले लो, है ना, कोई भी सर्कल ले लो। मान लेते आपने 95 वाला सर्कल ले लिया, तो 95 वाले सर्कल के बाहर क्या क्या है, इस सर्कल के बाहर की दुनिया में क्या क्या है, 45 है, 20 है और 58 माइनस 8 है। क्या क्या है, 45 है, 20 है और 58 माइनस 8 है। इन सभी का टोटल क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। यस और नो? यस सर। ठीक है, सो ये हो जाएगा कितना, कितना हो गया, ए की वैल्यू आ जाएगी 18 आ जाएगी, जितना मेरे को याद से आ रहा है। एडी नहीं आई थी आंसर, ए की वैल्यू 18 आई थी। यस और नो? अरे 9 4 13, 13 1 40, 140, 140 और 20 160, 160 ले गए तो 40 बचे, 58 में से 40 गए, 18 बचे। यस 18 इज द आंसर। ठीक है, तो ये 18 आ गया, तो ये जो अननोन था, दिस ए बिकम्स 18 नाउ। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर सकते हैं। अभी अब किसी को कोई डाउट है? ठीक है, क्वेश्चन बहुत सिंपल सिंपल है, जल्दी से कर लेते हैं। ठीक है, ये डेटा है, ये क्वेश्चन है, ये मैंने पेन से सॉल्व किया हुआ है, वही आंसर आए होंगे आपके। यहाँ 35 ही आया ना? हाँ, ये 53 माइनस ए था, जैसे ही आपने ए की वैल्यू 18 ए की जगह पे रखी, तो ये 53 माइनस 18 35 हो जाएगा। जैसे ही आपने वो 58 माइनस ए में ए की जगह पे 18 रखा, तो आपकी वैल्यू 40 हो जाएगी। यस और नो? यस सर। ठीक है, तो अब उससे पूछा क्या है, हाउ मेनी फैमिलीज आर देयर हु हैव टेकन अ सब्सक्रिप्शन टू फेसबुक एंड यूट्यूब बट नॉट डिस्कॉर्ड। फेसबुक एंड यूट्यूब, फेसबुक एंड यूट्यूब बट नॉट डिस्कॉर्ड, वही 18 ही तो फाइंड किया था पूरे क्वेश्चन में अपन लोग ने, तो 18 बिकम्स माय आंसर। इज दिस अंडरस्टूड? यस और नो? किसी को कोई डाउट? Yes, sir. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी Yes, फैमिलीज sir. आर देयर, हाँ somebody is saying something, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। No, sir. Okay, how many families are there who have taken a subscription to either only YouTube or only Discord? only वाली दुनिया, only वाली दुनिया मतलब ये 35, 45 और 40 वाली दुनिया। ठीक है, तो लेकिन बोला उसने either only YouTube, तो only YouTube कितने लोग हैं, 35 है ना, only Discord कितने हैं, 45 है। इन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। 80 becomes your answer. Any doubts? No, जल्दी से sir. बता दो, कोई डाउट? क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट परसेंटेज ऑफ द फैमिलीज हैव ओनली सब्सक्राइब टू फेसबुक? फेसबुक को ओनली ओनली सब्सक्राइब टू फेसबुक, ओनली सब्सक्राइब टू फेसबुक कितने लोग हैं, 40 है ना बेटा? सो 40 families have, or 40 people have subscribed to only Facebook. So 40 is what percentage of the total? So 40 upon 200 into 100 करोगे, बढ़िया सा 1/5 आएगा। 1/5 का मतलब 20% हो जाएगा। तो D becomes my answer. ठीक है, क्वेश्चंस वर वेरी इजी, है ना? एनी डाउट्स? आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, how many families are there who have taken the subscription of exactly 2 channels out of the given 3? exactly 2, याद आ रहा है वो D, E और F वाली दुनिया। ठीक है, exactly 2 मतलब ये 12, ये 18 और ये 20। exactly 2 का मतलब ये 12, ये 20 और ये 18, जिसका मतलब YouTube एंड Discord बट नॉट Facebook,
Facebook and Discord but not YouTube, YouTube and Facebook but not Discord. So 12 और 18 ऐड करोगे तो हो जाएगा 40, 40 और 20 ऐड, सॉरी 18 और 12 ऐड करोगे तो कितना होगा 30 ना, 30 और 20 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 50. So 50 becomes my answer. Any doubts? Any doubts? Anyone? Sorry, last question. The number of families who have taken the subscription of at least 2 channels from the given 3 options. Okay, at least 2. At least 2 का मतलब at least 2 का मतलब क्या हो जाएगा, ये वाली दुनिया. Exactly 1 को हटा दो तो exactly 2 बचेगा. तो उसमें क्या क्या आ जाएगा, 18, 12 और 20 तो आएंगे ही आएंगे, साथ ही साथ ये 30 भी आ जाएगा क्योंकि ऑल 3 वाला पार्ट है ना. तो ये 30, 30, 60 और 20, 80. 80 आर द पीपल हु हैव सब्सक्राइब टू exactly, sorry, at least 2. So what are the number of families who have subscribed, who have taken a subscription of at least 2 from the given 3 option is what percentage? So 80 is what percentage of? Of के बाद noun क्या आया है जिसको नीचे रखना है, the number of families who have taken the subscription of exactly 1. तो उसको किससे कंपेयर करना है, exactly 1 वालों से. तो खुद लॉजिकली सोचो कि जब 80 आ ही चुका है, टोटल दुनिया 200 की है, तो बाकी का जो बचा हुआ है वो 120 ही तो होगा. exactly 1 वाला, exactly 1 वाले में क्या आएगा, 35, 45 और 40 को अलग से ऐड करो तो भी 120 आएगा, अगर 200 में से 80 माइनस कर दोगे तो भी 120 आएगा. तो दिस इज व्हाट वाज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू. तो 42 are 43 are 2 upon 3 will be equal to 66.66, या इसको आप 200 upon 3 बोल सकते हो. एनी डाउट्स? एनी डाउट्स एनीवन? हाँ जी रिचा पूछिए. बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही. हाँ हाँ बोलो. Could you repeat the first part of question number 115? 115 वाले क्वेश्चन में डाउट है. हाँ बताइए 115 में क्या डाउट है. अच्छा 115, Yes, sir. हाँ बोलो इसमें क्या डाउट है. Sir, last part मतलब आंसर कैसे है वो समझ. ये ऐसे बोला बेटा कि ये जो 25 लोग थे वो 10th और 12th में से उठाए थे अपन ने, 10th और 11th में से उठाए हैं, ठीक है, इन द रेशियो ऑफ 2:3. मतलब अगर 2 लोग 10th के हैं मेल तो 3 लोग फीमेल है, सॉरी मेल है 11th के, तो टोटल मिला के 5 लोग अगर उठाए होते तो दिस रेशियो वुड हैव मेंटेन. यस और नो रिचा? Yes, sir. बट टोटल 5 लोग नहीं उठाए, हमने 25 लोग उठाए. तो 5 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दूं कि 25 हो जाए. सो द मल्टीप्लाइंग फैक्टर विल बी 5. वही 5 आप 2 में मल्टीप्लाई करो तो 10 आएगा, वही 5 आप 3 में मल्टीप्लाई करो तो 15 आएगा. सो यू गेट द वैल्यूज 10 and 15. अब ये जो 10 लोग हैं वो कहाँ ऐड हो रहे हैं, वो जितने 10th में ऑलरेडी लोग हैं, तो 10th में ऑलरेडी 80 लोग थे, उसमें जब 10 लोग ऐड हो जाएंगे तो अब 90 लोग हो जाएंगे ना बेटा. और ये जो 15 लोग हैं वो ऐड हो रहे हैं 11th मेल में, तो जब 45 में 15 ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे ना बेटा. इन दोनों का डिफरेंस पूछा गया इस क्वेश्चन में. यस और नो? यस और नो? Yes, sir. बस यही निकालना था हमें. सर क्वेश्चन नंबर 119 का आंसर 80 आएगा ना, ऑप्शन बी. आप एक बार देख सकते हैं, और आंसर की ना ऑप्शन ए दिया है सर 50. 119. यस सर. And then how many families are there taking the subscription of exactly 2? Exactly 2 की वैल्यू 50 आएगी. ओके सर. Exactly 2 की वैल्यू तो 12 प्लस 18 प्लस 20 हो गया ना बेटा, 30 प्लस 20 50. आंसर में क्या गिवन है,
आंसर में भी 50 है सर, मैंने 80 मार्क किया था। तो अपन भी गलत हो सकते हैं कभी कभी। चलिए, आई टेक अ लीव गाइस, थैंक यू।